In this class, we are going to study about the post-fertilization changes that occur in the embryo sac or the ovule or the ovary. So we are going to see what are the changes or the structural modifications that lead to formation of seed or fruit or the different structures which are present in the seed and the structure which give rise to those structure. That is, हम इस क्लास में वो सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, या फिर वो सारे चेंजेस पढ़ेंगे जो कि फ्लावर में या फिर जो एम्ब्रियो सैक है या जो फ्लावर के बाहर का जो थैलेमस है या फिर जो भी पार्ट्स हैं फ्लावर से रिलेटेड उनमें क्या चेंजेस आएंगे. सो अब हम वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था और हमने एम्ब्रियोजेनी भी पढ़ लिया था. दैट इज वी हैव कंप्लीटेड द मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी एज वेल एज द डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी. सो वी नो दैट व्हाट इज द एम्ब्रियो, what is an embryo and what are the structures contained inside it. तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर प्लूम्यूल होता है जो कि फ्यूचर शूट होता है. It also contains the radicle which is the future root and it is covered by a root cap which is a protective covering. And also the plumule contains something else which is called as the leaf primordia. So that leaf primordia forms the future leaves, or those are the cells which will give rise to future leaves. So all these structures are part of the embryo. So that embryo is also contained in something called seed. So we are going to study the seed. So first of all we will study what is a seed. So first of all we are going to see the definition of the seed. So seed is a small embryonic plant. So we know that a seed contains embryo. And why are we calling it a plant? तो हम इसे स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लांट वाले पार्ट्स तो इसमें भी हैं. प्लूम्यूल इज द शूट, the leaf primordia is the leaf and the radicle is the root like structure along with root cap. So it is containing the normal feature of a plant, that is the radicle, plumule and the leaf primordia. That is why we are calling it an embryonic plant, a plantlet or very miniature version of a plant. So a seed is the small embryonic plant enclosed in a covering called seed coat. So this seed coat that you see here is a covering or a hard covering or a soft covering. It could be different in different species of the seeds. So it is enclosed within a seed coat, usually with some stored food. So we had seen that endosperm was formed. हमने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले. तो एंडोस्पर्म में क्या था, फूड स्टोर हो रहा था ना. एंड डाइकोटिलेडोनस सीड्स में जैसे कि ग्राम हो गए या पीज हो गए, इनमें तो कोटिलेडॉन्स में फूड स्टोर होता है. तो सीड के अंदर फूड स्टोर हो सकता है विच मे बी इन द कोटिलेडॉन्स. नॉर्मली डाइकॉट्स में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है और एंडोस्पर्म नॉर्मली मोनोकॉट्स में ऑब्जर्व किया जाता है. बट ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस. फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स एंडोस्पर्मिक नहीं होते हैं जबकि वो मोनोकॉट्स होते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं डाइकॉट्स में भी, जैसे कि कैस्टर इज अ डाइकॉट बट स्टिल इट इज अ एंडोस्पर्मिक सीड. So apart from the exceptions, we normally find seeds with stored food in the cotyledon in the case of dicots, and seeds with stored food in the form of endosperm in the monocot seeds, which we will study later. Now seed is the reproductive structure. Why are we calling it a reproductive structure? Because the function of a reproductive structure is to form a new plant or a new organism. So a seed can give rise to a new plant. That is why we can call it a reproductive structure. And it can survive for some time. We know that a seed has a certain viability period. So viability period का मतलब होता है उस टाइम तक जब वो सीड बनने के बाद तक जर्मिनेट कर सकता है. That is the time up till which the seed can germinate and give rise to a healthy plant. So that is called as viability period. So that viability period means that the seed can survive for that period of time, and it is variable in different species. Maybe 100 years or maybe 100 days also, maybe 100 months also. So the survival time of a seed varies greatly, which we will study later. And it can give rise to a new plant on germination. Obviously a seed can germinate, लेकिन ये जो germination होगा क्या वो random होगा? तो नहीं होगा. यहाँ पर germination के लिए optimal conditions चाहिए. तो some seeds require certain amount of light or darkness, some seeds require certain amount of moisture or temperature. तो ये सारी चीज़ें जब optimal होंगी
तभी सीड जर्मिनेट करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट सीड विल जर्मिनेट जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे जो जर्मिनेशन होगा वो ऑप्टिमल कंडीशंस पर ही होगा। नाउ सीड जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही फॉर्म होता है, एंड वी नो दैट एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर फ्लावर्स आते हैं एंजियोस्पर्म में। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं हमने देखा था, सेंट्रल पार्ट है पिस्टिल, पिस्टिल है उसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो एंजियोस्पर्म में ओवरी होता है, तो इसी के कारण से एंजियोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं फ्रूट से। नॉर्मली जो सीड्स हैं एंजियोस्पर्म में उनके बाहर में फ्रूट्स होते हैं। सो दैट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब इनके पास फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है तो इनके पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी नहीं है। तो इस वजह से अगर ओवरी नहीं है तो फ्रूट कहां से बनेंगे? तो इनके जो सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे, लेकिन इनके जो सीड्स होंगे वो नॉर्मली फ्रूट से कवर्ड होते हैं। सो दीज बोथ कैन प्रोड्यूस सीड्स, बट द सीड्स विल बी नेकेड इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज they don't have flowers, therefore they don't have stigma, style, ovary, and ovary is the one which is forming the fruit. We can see from here ovary will form the fruit. Since ovary is not present over here, how can it form a fruit? So its seed will be naked and the seeds here will be covered with the fruit wall or the fruits. So first of all we are going to see that यहाँ पर जो seeds होंगे वो naked होंगे, और एंजियोस्पर्म्स के केस में जो सीड्स होंगे कवर्ड बाय फ्रूट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो दोनों में सीड्स हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर वाले पार्ट में या फ्लावर के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले हम कैलिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो वी नो कि कैलिक्स के मेंबर्स को हम सेपल्स कहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेपल्स वी कैन आल्सो राइट हियर कैलिक्स। तो फ्लावर के फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है तो वहां पर क्या होगा कि ये सारी पार्ट जो कि एक्सेसरी पार्ट है, हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट्स होते हैं एक्सेसरी और 2 पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव, या उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल होल्स। तो जो एक्सेसरी पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेपल्स या पेटल्स या कैलिक्स या कोरोला, और जो रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं हमारे स्टेमेंस और पिस्टिल्स। तो ये दोनों एक्सेसरी पार्ट्स हैं, तो ये दोनों तो नॉर्मली ड्राई होने के बाद फॉल ऑफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में एक एक्सेप्शन है, जैसे कि सेपल्स फॉल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल पर आपने ऊपर से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स अटैच देखे होंगे, तो वो जो ग्रीन कलर के स्टार जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज आर द सेपल्स। सो सेपल्स डू नॉट फॉल इन एवरी केस। तो नॉर्मली क्या होता है, सेपल्स ड्राई होने के बाद फॉल ऑफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में परसिस्ट कर जाते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्रिंजल। सो ब्रिंजल इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ परसिस्टेंट कैलिक्स। तो ये तो बात हुई कैलिक्स की यानी कि सेपल्स की। अब बात करते हैं कोरोला की यानी कि पेटल्स की। तो पेटल्स भी ड्राई होने के बाद फॉल ऑफ हो जाते हैं। सेम इज द केस विद स्टेमेंस, यानी कि जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे या मेल फर्टाइल स्ट्रक्चर्स थे स्टेमेंस, वो भी फॉल ऑफ हो जाएंगे। अब फ्लावर में जो सेंट्रल पोर्शन था दैट इज गाइनीशियम का पोर्शन, गाइनीशियम में पिस्टल्स के ऊपर में 2 पार्ट्स और नीचे में 1 पार्ट होते हैं। ऊपर में स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और नीचे में ओवरी। तो जो भी चेंजेस फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं या डेवलपमेंट होता है वो नीचे वाले पोर्शन में होता है, दैट इज ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। ऊपर वाला जो पिस्टिल का पार्ट है दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, उसका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा का काम था पॉलन ग्रेन को लैंड कराना, उसको रिकॉग्नाइज करना। स्टाइल का काम था पॉलन ट्यूब को नरिश करके उसको रास्ता दिखाना। तो ये दोनों चीजें हो चुकी हैं, तो अब स्टिग्मा और स्टाइल की जरूरत नहीं है। Therefore, what will happen? These 2 parts, that is the stigma and style, also fall off. So we see that only the ovary of the flower is remaining, but the rest, that is the stigma, style, stamens, calyx, corolla, they all fall off, dry and fall off. An exception is one, that is brinjal. But normally now we see these all parts fall off. So these parts will survive and these parts will
fall off or separate away from the flower. Now we will see what are the structural changes and what are the developmental changes that are going to occur in these structure. So these parts will fall off and now we will study the parts which persist. ये सारे parts रहेंगे हमेशा seed में normally. So first is the seed, जो कि seed किससे बनता है? तो obviously seed is a fertilized ovule. तो ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है सीड. सो ऑब्वियसली सीड इज फॉर्म्ड बाय द ओव्यूल. नाउ हमने देखा था ओव्यूल के दो इंटेगुमेंट नॉर्मली पाए जाते हैं, किसी में एक भी होता है, किसी में तीन भी होता है. तो नॉर्मली दो इंटेगुमेंट पाए जाते हैं. तो वहां पर जो अंदर वाला इंटेगुमेंट था, जो कि इनर इंटेगुमेंट कहते हैं, तो वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन सीड कोट भी डबल लेयर्ड होगा अगर इंटेगुमेंट डबल लेयर्ड होगा. तो अगर जो इनर इंटेगुमेंट है वो टेगमेन बन जाएगा. टेगमेन का मतलब होता है इनर सीड कोट. उसी तरह जो आउटर इंटेगुमेंट था वो बन जाएगा टेस्टा. टेस्टा का मतलब है आउटर सीड कोट. यानी कि ये दोनों जो इंटेगुमेंट्स हैं सीड कोट के दो लेयर बन गए. दोनों को साथ में हम सीड कोट कह सकते हैं. ये दोनों इंडिविजुअल लेयर हैं लेकिन इनको साथ में हम सीड कोट भी कह सकते हैं. इट्स नॉट कि हमेशा उन्हें सेपरेट बोलना जरूरी नहीं है. अगर हम देखना चाहें तो दोनों में सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन दोनों को कॉमनली हम साथ में सीड कोट कहते हैं. नाउ वी कम टू द ओवरी, दैट इज द फ्रूट. तो जो फ्रूट का नॉर्मल पार्ट होता है जो कि सीड के बाहर वाला पोर्शन होता है, सो दिस ओवरी वाज इनक्लोजिंग द ओवरी, ओव्यूल. सो ओवरी के अंदर था ओव्यूल. बाहर वाला पार्ट ओवरी है तो अंदर वाला पार्ट ओव्यूल है. लाइकवाइज सेम पैटर्न पे यहां पे क्या होता है, बाहर वाला पार्ट हो जाएगा फ्रूट, यहां पर बाहर वाला पार्ट हो जाएगा फ्रूट और अंदर वाला पार्ट हो जाएगा सीड. तो ओवरी से बन गया फ्रूट और ओव्यूल से बन गया सीड. सो अरेंजमेंट लगभग सेम ही है. बाहर में ओवरी, अंदर में ओव्यूल. तो बाहर में फ्रूट, अंदर में सीड. तो नॉर्मली जो अरेंजमेंट है ओवरी ओव्यूल का, उसी के पैटर्न पे फ्रूट और सीड का भी अरेंजमेंट है, क्योंकि ओवरी से बना है फ्रूट, ओव्यूल से बना है सीड. सो द ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट. अब ओवरी का जो वॉल होता है, जो हमने देखा था पिस्टिल के केस में, तो ओवरी का वॉल बना देगा फ्रूट का वॉल. तो उस फ्रूट के वॉल को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प. तो पेरिकार्प में नॉर्मली तीन लेयर ऑब्जर्व किए जाते हैं, दैट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. तो यहाँ जो हम ओवरी का वॉल देख रहे हैं, जिसे हम पेरिकार्प कह रहे हैं, इसे हम तीन पार्ट्स में नॉर्मली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ओवरी के जो वॉल हैं, जो कि अब बन गए हैं फ्रूट के वॉल. तो फ्रूट के वॉल में जनरली तीन लेयर ऑब्जर्व किए जाते हैं. सबसे बाहर वाला लेयर को हम कहते हैं एपिकार्प, बीच वाले को मेसोकार्प और अंदर वाले को एंडोकार्प कहते हैं. सो ओवरी का वॉल बन गया. अब फ्रूट का वॉल. अब जो माइक्रोपाइल है, हमने देखा था कि ओव्यूल के टिप पर एक ओपनिंग था जिसको हमने कहा था माइक्रोपाइल. तो माइक्रोपाइल वाज लाइक एन ओपनिंग, जिससे कि पॉलन ट्यूब अंदर गया था. तो ये जो ओपनिंग है सीड में भी रहेगा, यानी कि सीड में भी माइक्रोपाइल होगा, लेकिन वहां पे हम उसे नॉर्मली सीड पोर कहते हैं. तो माइक्रोपाइल सरवाइव कर जा रहा है सीड के अंदर, यानी कि माइक्रोपाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं है, माइक्रोपाइल ओपन रहेगा. तो बाकी चीजों में तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन माइक्रोपाइल में जनरली नहीं हुआ. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यानी कि बाकियों में चेंज हो रहा है, इस माइक्रोपाइल में नहीं हो रहा है. भले ही उसे हमने एक न्यू नाम दे दिया यहाँ पर सीड पोर, लेकिन है तो वो ओपनिंग, जैसा कि माइक्रोपाइल ओव्यूल में था वैसा माइक्रोपाइल सीड में होगा. तो यहाँ पे नाम बस चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है. सो दिस ओपनिंग विल आल्सो बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ सीड, एंड इन द केस ऑफ सीड वी विल कॉल इट अ नॉर्मल सीड पोर. सो सीड पोर की बात होगी. इसके अलावा अब हम बात करेंगे न्यूसेलस की. तो न्यूसेलस जो होता है वो एम्ब्रियो सैक के बाहर होता है और ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. तो एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि एंटीपोडल्स हो गए या सिनर्गिड्स हो गए.
तो ये सेल्स न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेके एम्ब्रियो सैक में सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्टोरियम की तरह बिहेव करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट न्यूसेलस से। तो नॉर्मली न्यूसेलस डिसइंटीग्रेट या खत्म हो जाता है, न्यूसेलस फिनिशेस ऑफ व्हाइल द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल और द फर्टिलाइजेशन, या फिर उसके बाद न्यूसेलस खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है, और अगर वो परसिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। सो ओनली persistent nucellus is called as perisperm, but normally nucellus does not persist in the seed. Nucellus finishes off before the development of the mature seed. Now we come to the funicle part. तो हमने देखा था कि ओव्यूल के बाहर से एक स्टॉक था जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है, यानी कि ओवरी से निकलता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से निकलता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से अटैच होता है हमारा ओव्यूल। तो ओव्यूल का जो फ्यूनिकल था वो अब बन जाएगा स्टॉक ऑफ सीड, यानी कि ओव्यूल बना सीड, तो फिर ओव्यूल का स्टॉक बन गया स्टॉक ऑफ सीड, यानी कि यहाँ पर जो फ्यूनिकल है वो बन गया स्टॉक ऑफ सीड। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो दो फर्टिलाइजेशन हुआ था, एक वेजिटेटिव और दूसरा जेनरेटिव, तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था, जिसे हमने PEC शॉर्ट में कहा था। सो दिस PEC इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है काफी तेजी से डिवाइड करता है। इट शोज वेरी हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। एंड व्हाट इज एंडोस्पर्म? इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हिच नरिशेस द एम्ब्रियो, या फिर अभी मोनोकॉट्स के केस में ये परसिस्ट कर सकता है। सो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था जो कि फर्टिलाइजेशन से बना था, वो क्या बना देगा? एंडोस्पर्म, वो बना देगा एंडोस्पर्म टिश्यू, या उसे हम नॉर्मली एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं। उसके अलावा एम्ब्रियो सैक के अंदर और भी तो सेल्स थे, जैसे कि एंटीपोडल सेल थे जो कि चलाजल एंड पर थे। उसके अलावा माइक्रोपाइलर एंड पर एग सेल के अलावा दो सिनर्गिड्स भी थे। तो जो दो सिनर्गिड्स थे और 3 एंटीपोडल सेल्स थे वो सभी डीजेनरेट कर जाएंगे, दैट इज द सिनर्गिड्स एंड द 3 एंटीपोडल सेल्स ऑल विल डीजेनरेट। तो ये सारे चेंजेस होते हैं ओवरी या ओव्यूल के अंदर, या फिर हम इनफैक्ट इसे फ्लावर पर चेंजेस कह सकते हैं, या टोटल फ्लावर के स्ट्रक्चर्स में ये सारे चेंजेस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इन सभी चेंजेस के बाद क्या बनता है? सीड, यानी कि ये सारे चेंजेस होंगे फ्लावर में, ओवरी में, या ओव्यूल में, या एम्ब्रियो सैक में, तब जाके बनता है सीड। तो अब हम पढ़ेंगे कि सीड के सर्टेन प्रॉपर्टीज होते हैं, सीड के क्या बेनिफिट्स हैं, सीड के क्या टाइप्स हैं, सीड में डोरमेंसी क्या होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव टू स्टडी नाउ। सो दीज स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस और चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, एंड आफ्टर सीड वी विल स्टडी द fruit. So now we will study about the properties of seeds. Now we would study about the seeds on the basis of whether or not they contain endosperm or they don't contain. So there are two types of seeds on the basis of whether they possess or don't possess endosperm. So there are certain seeds which are dicots and they store their food in their cotyledons. So these are normally called as non-endospermic or exalbuminous seeds. And the other type, that is the opposite of this type, is the albuminous or the endospermic seed. So these seed store food in the form of endosperm or in the endospermic tissue. So these are normally monocots. So this is the general trend that is observed. So in the case of dicots, we have food in the cotyledons, but in the case of monocots, we have food in the endosperm. So this is the difference. दैट इज एक एक्सैल्बुमिनस सीड में जो फूड होगा वो जनरली कॉटिलेडॉन्स में होगा, और ये कौन से प्लांट्स होते हैं? जनरली डाइकॉट्स होते हैं। और उसी तरह हम मोनोकॉट के लिए बात करें तो मोनोकॉट्स में जो फूड होता है जनरली वो स्टोर होता है इन द एंडोस्पर्म। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप्स होते हैं। नाउ ये तो जनरल ट्रेंड है कि मोनोकॉट्स जो होंगे एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट्स होंगे कॉटिलेडनस या डाइकॉटिलेडनस। तो यहाँ पर जो कोटिलेडॉन्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे डाइकॉट्स में फूड स्टोरेज के टिश्यू होंगे। तो कुछ डाइकॉट्स में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज कैस्टर। तो कैस्टर एक डाइकॉट है,
बट स्टिल उसके अंदर एंडोस्पर्म है। लेकिन उसी का ऑपोजिट एग्जांपल एक है ऑर्किड्स। तो ऑर्किड्स होते हैं मोनोकॉट्स, लेकिन इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। सो दिस कैस्टर एंड ऑर्किड्स आर एक्सेप्शंस इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। सो कैस्टर डाइकॉट होने के बाद भी एंडोस्पर्मिक है, और जो हमारा ऑर्किड है वो मोनोकॉट होने के बाद भी नॉन एंडोस्पर्मिक है। नाउ वी कम टू द पेरिस्पर्म पार्ट। तो वी हैव जस्ट सीन कि जो न्यूसेलस होता है वो जनरली फिनिश ऑफ हो जाता है, बट कभी कभी परसिस्ट कर जाता है। तो उसके दो एग्जांपल है हमारे पास, ब्लैक पेपर और बीट। तो इनमें क्या होता है कि पेरिस्पर्म जनरली न्यूसेलस का जो पार्ट होता है वो प्रिजर्व हो जाता है या फिर वो परसिस्ट कर जाता है। नाउ वी कम टू द डोरमेंसी। सो डोरमेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द केस ऑफ सीड्स। सो इन जनरल टर्म्स जो डोरमेंसी होता है वो नॉर्मली एक इनएक्टिव स्टेज होता है या फिर ऐसा पीरियड होता है जहां पर सीड का ग्रोथ या सीड का जर्मिनेशन और उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सो दैट फेज इज कॉल्ड एज डोरमेंसी। तो डोरमेंसी के बहुत सारे डिफरेंट कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डोरमेंसी। सो इट इज द स्टेट इन विच सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि सीड्स यहाँ जर्मिनेट नहीं करेंगे इवन अगर हम उन्हें फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस दे, जैसे कि टेम्परेचर दे, लाइट दे, वाटर दे, ऐसी चीजें हम अगर सीड को प्रोवाइड करते हैं उसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि सीड अपने डोरमेंट स्टेज में है। अब ये जो डोरमेंट स्टेज है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि सीड के अंदर का जो एम्ब्रियो होता है वो इमैच्योर होता है। मेन रीजन बिहाइंड इज that seeds require a period of rest। तो सीड्स को पीरियड ऑफ रेस्ट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर होता है इमेच्योर एम्ब्रियो बिफोर बीइंग केपेबल ऑफ जर्मिनेशन। तो जब तक एम्ब्रियो अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो एबिलिटी होता है मैच्योर या फिर जर्मिनेट करने का, वो जब तक डेवलप नहीं हो जाता है तब तक सीड को अगर हम अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन देंगे तब भी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड डोरमेंसी, दैट इज वहां पर सीड्स को एक पीरियड ऑफ रेस्ट की जरूरत होती है ताकि उसका जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से मैच्योर हो पाए। सो डोरमेंसी के टाइम पे कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि सीड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, सीड का मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रह जाता है, यानी कि अप्रॉक्स 10 to 15% बाई मास। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत कम और उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी बहुत कम होती है। तो डोरमेंसी के ये दोनों इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम, मॉइस्चर और भी कम। सो ये दोनों फीचर्स होते हैं जब एक सीड डोरमेंसी में होता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डोरमेंसी को इफेक्ट कर सकते हैं। एक सबसे कॉमन सा फैक्टर है लाइट। तो बहुत सारे सीड्स को एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ लाइट या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत होती है अपना डोरमेंसी से बाहर आने के लिए, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगा तो सीड्स डोरमेंट ही रहेंगे। उसके अलावा हम मॉइस्चर की बात कर सकते हैं। सीड्स को डोरमेंसी से बाहर आने के लिए यानी कि जर्मिनेशन करने के लिए उन्हें मॉइस्चर की जरूरत होती है, तो अगर वाटर नहीं मिलेगा तो उनमें डोरमेंसी मेंटेन्ड रहेगा। उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि हार्ड सीड कोट। तो कई बार क्या होता है कि जो सीड कोट होता है दैट इज जो बना था ओव्यूल के वॉल से, तो ये जो सीड कोट होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है जिससे कि कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं आ पाता या फिर बाहर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से डोरमेंसी बहुत टाइम तक रहता है या फिर हार्ड सीड कोट की वजह से सीड डोरमेंट ही रह जाता है। उसके अलावा जर्मिनेशन इनहिबिटर्स होते हैं। तो प्लांट के अंदर यानी कि सीड के अंदर जो प्लांटलेट है या जो छोटा सा एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो में कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। हो सकते हैं एब्सिसिक एसिड हो या कोई और इथिलीन हो या कोई और बायोकेमिकल हो वहां पर जो कि उसके ग्रोथ को या जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी डोरमेंसी हो सकता है। उसके अलावा इमैच्योर एम्ब्रियो, कई बार ऐसा होता है कि एम्ब्रियो के मैच्योरेशन से पहले ही सीड बन जाता है, तो उस सीड में अगर एम्ब्रियो मैच्योर नहीं है तो वो सीड तो जर्मिनेट करेगा ही नहीं, तो इस वजह से इमैच्योर एम्ब्रियो के कारण सीड जो है वो डोरमेंट फेज में ही रहेगा। उसके बाद है इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड ऑक्सीजन। तो कई बार क्या होता है कि जो सीड कोट होता है वो इतना ज्यादा थिक होता है या इतना ज्यादा एकदम ही सा ओपेक टाइप का हो जाता है जिससे कि वाटर या एयर अंदर बाहर नहीं जा पाएंगे, तो अगर ऐसा होगा तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट्स,
तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूट्स में क्या होता है बेसिकली कि जहां पर जो सॉइल है या फिर जहां पर सीड का प्रेजेंस है वहां पर अगर सॉल्यूट्स का यानी कि वाटर या जो भी मटेरियल है वहां पर अगर वो वहां पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट्स की तो उस वजह से भी जर्मिनेशन प्रिवेंट हो जाता है, वहां पे भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है. सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द जर्मिनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइट, टेम्परेचर, इमेच्योर एम्ब्रियो एंड वाटर. सो ये सारे मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि डोरमेंसी को इफेक्ट करते हैं. उसके अलावा हार्ड सीड कोट, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, इम्परमिएबिलिटी, ये सब फैक्टर्स भी होते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोरमेंसी की. तो एक टाइप का डोरमेंसी सीड के खुद की वजह से होता है और दूसरा एनवायरनमेंट की वजह से होता है. तो अगर खुद की वजह से डोरमेंसी हो तो उसे बोलते हैं इननेट, और अगर एनवायरनमेंट की वजह से डोरमेंसी हो तो उसे बोलते हैं हम एनफोर्स्ड. तो यहाँ पर खुद की वजह से क्यों डोरमेंट होता है? क्योंकि उसका एम्ब्रियो इमैच्योर होता है. तो अगर इमैच्योर एम्ब्रियो है तो उसे अगर हम फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन देंगे यानी कि सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन देंगे लेकिन उसका एम्ब्रियो अगर इमैच्योर है तो उस केस में भी प्लांट जर्मिनेट नहीं करेगा या फिर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. सो ये सीड के खुद की प्रॉब्लम की वजह से वो डोरमेंसी में है तो उसे बोलते हैं इननेट. अब कई बार क्या होता है कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, सॉइल में मॉइस्चर नहीं हो, टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, या फिर लाइट अवेलेबल नहीं हो, या फिर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो. तो अगर इन्वायरमेंट ऐसा है जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है तो वैसे डोरमेंसी को हम कहते हैं एनफोर्स्ड डोरमेंसी. नाउ वी कम टू द फ्रूट. तो फ्रूट्स के बारे में मेनली आपने 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ लिया होगा. फ्रूट के टाइप्स, एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल फ्रूट या कॉम्पोजिट फ्रूट्स, फिर ड्राई फ्रूट्स और फ्लेशी फ्रूट्स, जो भी इस तरह के फ्रूट्स होते हैं वो सारे तो आपने 11th में ही पढ़ रखा है. यहाँ पर हमें ये जानना है कि फ्रूट्स बेसिकली होता क्या है. तो फ्रूट्स ओवरी के राइपनिंग से बनता है यानी कि ओवरी मैच्योर होके फ्रूट बना देता है. तो ओवरी बेसिकली राइपन होता है, मैच्योर होता है और वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है. और इसका पर्पस क्या है? सीड को एनक्लोज करता है. फ्रूट का एक बेसिक पर्पस है, और भी फंक्शंस होते हैं फ्रूट के, लेकिन एक बेसिक पर्पस क्या है? सीड को एनक्लोज कर देता है. और यही उल्टा होता है जिम्नोस्पर्म्स में. जिम्नोस्पर्म में ये जो फ्रूट होता है वो एनक्लोज नहीं करता है सीड को. इसी की वजह से वहां हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे कवर्ड सीड का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सीड को कवर करने वाला फ्रूट है. अब हम ड्राई या फ्लैशी फ्रूट्स की बात कर सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स में ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है. उसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स है मस्टर्ड या ग्राउंडनट. अगर हम फ्लैशी फ्रूट्स की बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पल्प होता है. फ्लैशी फ्रूट यानी कि वहाँ पर फ्रूट के अंदर जो पल्प है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है. जैसे कि मैंगो, गुआवा या ऑरेंज, इनमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है और पल्प भी ज़्यादा होता है. तो ये तो बात हुई ड्राई और फ्लैशी फ्रूट्स की. Now we come to the other part that is false and true fruit. तो नॉर्मली हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो ओवरी के राइपनिंग की वजह से होता है. तो जो भी फ्रूट जिसमें भी अगर ओवरी का ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन है फ्रूट के फॉर्मेशन में तो उसे बोलेंगे ट्रू फ्रूट. लेकिन अगर ओवरी के साथ साथ कोई और स्ट्रक्चर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट के फॉर्मेशन में तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट. यानी कि ऐसा नहीं है कि फॉल्स फ्रूट में ओवरी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन ओवरी के अलावा देयर आर सर्टेन अदर पार्ट्स आल्सो एंड मोस्ट कॉमनली थैलेमस, जिसे हम रिसेप्टेकल भी बोलते हैं. तो ये सारे पार्ट्स फ्रूट्स के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो वैसे फ्रूट जहां पर ओवरी और दूसरा पार्ट दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फॉल्स फ्रूट. जहां पर सिर्फ और सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में तो उसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट. तो फॉल्स फ्रूट्स के 2-3 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है या फिर कैश्यू है. सो दीज आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स क्योंकि इसमें ओवरी के साथ साथ थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होता है इन द फ्रूट फॉर्मेशन. और इनकी एग्जांपल्स तो लगभग सभी होंगे क्योंकि 90% या मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं क्योंकि उनमें मेनली ओवरी का ही कंट्रीब्यूशन होता है. दीज आर एक्सेप्शन, दैट इज फॉल्स फ्रूट काफ़ी रेयर होते हैं और जनरली जो हम फ्रूट देखते हैं वो सारे के सारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं. सो नाउ वी हैव सीन सीड एज वेल एज फ्रूट. सो फ्रूट में एक और चीज टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स. And also there are certain fruits which are called as parthenocarpic fruits. So now we are going to study those things.